friends, welcome on Europedia, and this video is related to foreign destinations for Indian students. When it comes to pursuing masters MS, there are 4 destinations which are very important for Indian students, and I'll explain you the reason also for that. One is Singapore. Reason: wonderful destination to stay. 2 top universities of the world. NUS rank 7, NTU Nanyang Technical University rank 11. Wonderful universities, and 2 more universities where getting is easier and job opportunities are also there. So सिंगापुर एक अच्छी कंट्री है रहने के लिए, जॉब्स के लिए, और इंडियन बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स का प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है, स्पेशली साउथ इंडियन स्टूडेंट्स लाइक फ्रॉम तमिलनाडु एंड ऑल, दे प्रेफर सिंगापुर. वंडरफुल. एंड गेट एग्जाम का गेट स्कोर का वैलिडिटी भी है वहाँ पे. NUS NTU दे सी दैट ओके, इफ यू हैव गेट, GRE इज नॉट रिक्वायर्ड, गेट विल वर्क. Second destination is what we prefer in the Asian continent is Hong Kong. Reason: English speaking. Not only in the university, the subjects which we are studying, but outside the university, if you are doing job, if you are doing work, if you are talking to people, English speaking. Because British left India in 1947 and we still speak English. Hong Kong, British left in 1997, 50 years after India. 1997 तक British rule था, and China want Hong Kong to be in the same mode, like English speaking है वहाँ पे country, और that is developing very fast, and China is very seriously investing a lot actually कि universities भी global rank universities हों, और Hong Kong में global rank universities हैं. And the best thing is, as I told you, like countries want these universities to grow. तो unlike सिंगापुर में शायद तुम्हें scholarship ना मिले, Hong Kong में scholarship मिलता है. So if Singapore universities can be very good, why not Hong Kong? That is what China is thinking. So mainland China is basically very serious कि Hong Kong universities grow करें as separate island. That is what is happening. Then comes this South Korea. South Korea में even IELTS is not required. Professors are very welcoming, and you can get into master's program or integrated PhD program, or PhD through professors. That is another concept, PhD through professor, and professors are very cooperative. And one destination which is the favorite and all the students want to go are Germany. Why? Because education is free. पब्लिक यूनिवर्सिटीज जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशन फ्री है, और गेट स्कोर वहाँ पे भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक, RWTH एंड बाकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी देखती हैं आपका गेट स्कोर. अगर है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपके पास है तो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऐड योर गेट स्कोर. These are the destination. And then 5th is Japan. In case you are specifically interested for Japan, you can go to Japanese universities also. Now let me show you, friends, what are universities in Singapore and the requirement. Singapore University of Technology and Design एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, 519 रैंक है. रैंक मत देखना, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है. IELTS स्कोर की भी रिक्वायरमेंट बताई हुई है, डेडलाइंस भी हमारे पास हैं, और यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद, MS करने के बाद आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं. तो आपको डिग्री चाहिए, अपनी CV चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का स्कोर चाहिए, वो आपको चाहिए. तो अगर आप ग्लोबल के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो यूरोपीडिया ग्लोबल आपको हेल्प कर देगा इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए. IELTS में भी हमारे मेंटर आपको हेल्प करते हैं, तो यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग इनटू दैट. देन अगर ननयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बोला जाए, MS के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, PhD के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पोस्ट डॉक के लिए जाना तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन है सारे. तो आपको ये चीज़ की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, LOR वगैरह चाहिए होता है. बट एज ए टोल्ड यू, आपको अभी ट्राई करना है कि अपना CV बन जाए, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स कॉलेज के आपको मिल जाएं. अगर आप MS के लिए जाना चाहते हैं तो BTech के मिल जाएं, अगर PhD के लिए जाना चाहते हैं तो मास्टर्स और BTech के आपके ट्रांसक्रिप्ट्स मिल जाएं, समथिंग लाइक दैट. सिमिलरली NUS में भी सिमिलर आपको चाहिए, एक IELTS का स्कोर आपको रिक्वायर्ड है, तो IELTS में 1 मंथ लगेगा, एंड यू कैन प्रिपेयर दैट. पासपोर्ट आप अपना बनवा लीजिए, और साथ में मास्टर्स की जो LOR वगैरह प्रोफेसर से बात करके रखो. 2 या 3 LOR चाहिए, सो 2 to 3 प्रोफेसर्स, और इफ यू आर वर्किंग समवेयर यू नीड टू हैव दैट डिटेल. एंड सिमिलरली सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन, ये कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं. सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बेसिकली रैंक उनका उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, राइट. SIT, SMU, SUTD, इनमें भी सेम डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है. हांगकांग यूनिवर्सिटीज़ आ गई फ्रेंड्स. हांगकांग यूनिवर्सिटी जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग वर्ल्ड रैंक 11 है, एज प्रेस्टिजियस एज NUS. अब NUS में हाइप बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए कंपटीशन बढ़ गया, लेकिन सिमिलर रैंक की यूनिवर्सिटी और ज़्यादा अच्छी स्कॉलरशिप देने वाली है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग. इसमें कंपटीशन आपका कम रहता है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है. हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 44 रैंक है, बहुत अच्छा है. ये भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, ये अगर डॉक्यूमेंट्स, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता.
फिर उसके बाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन, ये अब यूनिवर्सिटीज़ हमारी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ आ गई। इसमें भी एक APS सर्टिफिकेट है जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के लिए चाहिए। तो अगर आप जर्मनी में जाना चाहते हैं तो APS सर्टिफिकेट्स और आइल्स और ट्रांसक्रिप्ट्स ये जल्दी से जल्दी आपको अरेंज करनी पड़ती हैं। ये योरपीडिया के मेंटर आपको मेंटर करेंगे, योरपीडिया के मेंटर आपको मेंटर करेंगे, लेकिन इनमें 1 मंथ का टाइम मान के चलना होता है। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पहले पासपोर्ट आप लीजिए, फिर APS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, फिर आइल्स के लिए हम तैयारी करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे एंड वी विल स्टार्ट अप्लाइंग। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ड्रेसडेन, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन, ये कुछ आपकी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ इनमें मिलती हैं। सो 2 यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख और RWTH, ये गेट स्कोर को बहुत वैल्यू देती हैं और RWTH सबसे बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेफर्ड है। उसके बाद फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन कोरिया के अंदर, कोरिया में स्कॉलरशिप मिलता है, काफ़ी अच्छा होता है, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन है और कोरिया की ये यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप एक अच्छा करियर देख रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर देख रहे हैं और कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं जो ग्लोबल कंपनीज हैं, तो ये आपकी कुछ डेस्टिनेशन हैं जो आपको ईजी, चीप और स्कॉलरशिप के साथ मिलेंगी और पोस्ट गेट के अगले 2-3 मंथ आप इनमें यूटिलाइज कर सकते हैं। इन केस यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर मेरी वीडियो पे पड़ा है आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या गूगल फॉर्म भर सकते हैं एंड आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू गेट अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू।